आशा રાખીએ કે બધા જે બી કઈ વાતો ગઈકાલના વિષયના બારામાં જ કરતા હશો, મૂળ શું ને રૂઢી શું, કારણ કે એનો માહોલ જ એવો છે. અને ખરેખર આપણે પરમ દિવસથી ઉત્સવના માહોલમાં જ છીએ. ગુસાઈજીના શ્રીમદ પ્રભુચરણ ગુસાઈજીના ઉત્સવથી જે આપણને જે કીધું હતું, અને સૌભાગ્યની વાત છે કે બીજા દિવસથી આપણો આ વાંગમય ઉત્સવ શરૂ થયો છે. એટલે આપણી જે બી કંઈ વાતો હશે એ વાંગમય ઉત્સવના સંદર્ભમાં જ હશે એવી આશા સાથે જે ગઈકાલે જે આપણને સમજાવેલું હતું, સુનામીમાં આપણે બહી ન જઈએ, આપણો માર્ગ બહી ન જાય, આપણા સિદ્ધાંતો, આપણો વારસો, આપણી અસ્મિતા એ ક્યાંક કોઈ ધોવાઈ ન જાય કોઈક આવા ઉછળતા મોજામાં. તો એની જવાબદારી કોની છે? બહુ જ ફેસ વેલ્યુ પર જે ખૂબ જ ઉદાહરણો સાથે અને ખૂબ જ રમૂજ સાથે આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. પણ એની પાછળ એક ગંભીર ચિંતન, એક ખૂબ જ આપણી જવાબદારીની એક અરજ જો આપણે મહેસૂસ કરી શકીએ તો કદાચ આપણા વાંગમય ઉત્સવની સાર્થકતા હશે. અને એના સંદર્ભમાં ઘણી બધી આપણી પ્રવૃત્તિઓ જે ચાલી રહી છે, જે ગઈકાલે રસિકભાઈ આપણને સમજાવેલી હતી, તો આપણે કંઈ અહીંયા પીએચડી કરવા માટે જેમ જે સમજાવ્યું કે કોઈ બોલવા માટે કે કોઈના પર પ્રભાવ પાડવા માટે જે ભેગા નથી મળતા, પણ ખરેખર આ વિચારોને સમજવા, ગ્રાહ્ય કરવા અને આપણું જીવન બની જાય એ પ્રયત્ન માટે આપણે જો ભેગા થતા હોઈએ તો શું ખાલી શ્રવણથી જ આપણું આ જીવન આપણે જીવી શકશું? તો ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ છે. આમ તો આપણો માર્ગ ભલે એકાંતિક હોય, ભક્તિ માર્ગ, પણ એકાંતિક દેવના સંદર્ભમાં છે, નહીં કે ખાલી આપણા પૂરતો જ આપણે જ ખાલી ઘરમાં જે બી કંઈ કરતા હોય ક્રમ, અથવા તો ખાલી આપણા પૂરતું જ રાખીએ શ્રવણ વગેરે. પણ સાથે સાથે જે પુષ્ટિ અસ્મિતાનું ગાન આપણે સમજી રહ્યા છે કે જે મૂળ આચાર્યના વિચારોને વાણીમાં જેના બીજ રોપાયેલા છે, એ પુષ્ટિ અસ્મિતાની જાગૃતિ, એનું સંવર્ધન, એનું સંરક્ષણ, અને સાથે સાથે એ આપણે એકબીજા સાથે કઈ રીતે શેર કરીએ અને એક સહિયારો જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેથી કરીને આ માર્ગનો અમૂલ્ય વારસો આપણે જીવી શકીએ, આપણી આવનારી પેઢીને આપી શકીએ. કમસે કમ જે લોકોને ખરેખર પુષ્ટિ માર્ગ શું છે સમજવાની, જાણવાની ઈચ્છા છે, તો એ દેખાતો સાંપ્રતમાં જે પુષ્ટિ માર્ગ દેખાઈ રહ્યો છે, અથવા તો સાંપ્રતને કારણે જો કોઈ પણ પુષ્ટિ માર્ગને માટે અનુમાન બાંધે તો એની જવાબદારી કોની હશે? અને ખરેખર જે જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિશાળી વર્ગ છે, અથવા તો જેને ખરેખર જીવનમાં કંઈક નિષ્ઠાથી કંઈક કરવું છે, એવા લોકો સુધી જો આપણે આપણો મેસેજ, આપણે આપણો સંદેશ નહીં પહોંચાડી શકીએ તો ઘણે બધે અંશે, મહદ અંશે ખરેખર આપણે એના ગુનેગાર હશું. અને એવું ન થાય એટલે માટે રોજની ખાલી 15 મિનિટ આપણે ગણીએ ને, ફક્ત 15 મિનિટ, કે મારે 15 મિનિટ માર્ગ માટે આપવી છે, 30 મિનિટ મારે મારો સ્વ અભ્યાસ કરવો છે, તો મને લાગે છે કે 24 કલાકના સમયમાંથી આપણે 15 મિનિટ માર્ગ માટે અને 30 મિનિટ આપણા પોતાના અભ્યાસ માટે કાઢીએ તો પણ હાલ પૂરતું તો ઘણું થઈ રહેશે. અને એમાંથી ઘણું બધું કાર્ય અને કાર્યમાંથી ઉત્પન્ન થતું રિઝલ્ટ નિષ્પન્ન થશે. હવે એમ થાય કે 15 મિનિટ રોજની કઈ રીતે કાઢવી, એટલે 15 ગુણ્યા 7 કરી નાખવાના, તો અઠવાડિયાના જે બી 105 મિનિટ એટલે 2 કલાક જેવું થતું હોય, તો ખાલી ફક્ત અઠવાડિયામાં 2 કલાક શું આપણે આપણા માર્ગ માટે, જ્યારે એક યુગથી અથવા તો એક યુગથી પણ વધારે સમયથી જે એવો મહાપ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, અને આપણે જે આ સંખ્યામાં અહીંયા ભેગા થઈએ છીએ, તો આપણે આ બીજાને કઈ રીતે પહોંચાડવું એ આપણી ખરેખર જવાબદારી છે. અને મારો તો અનુભવ છે કે એમાં ઇનડાયરેક્ટલી ખરેખર આપણને જ ફાયદો થતો હોય છે, કારણ કે કંઈક કરવા માટે કંઈક હોમવર્ક કરવું પડે, કંઈક વિચારવું પડે, કંઈક લખવું પડે, અને આપણે અહીંયા કોઈને એકબીજાને કંઈક શેર કરવા આવીએ છીએ એટલે એમાં કોઈ સંકોચ કે શરમ રાખવી નહીં. મૂળમાં કહેવાની વાત એમ છે કે જે ગઈકાલે રસિકભાઈ સમજાવી રહ્યા હતા, અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ જે ચાલી રહી છે એમાં ખરેખર કાર્યકર્તાઓની ખોટ આપણે મહેસૂસ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે ખરેખર આ ઉત્સવને અંતે નક્કી કરીએ કે મારે અઠવાડિયામાં કોઈ પણ રીતે 2 કલાક કાર્ય માટે આપવા છે. અને જે બી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, બાળકોની, યુવાનોની, કીર્તનના વર્ગની, શૃંગાર વર્ગની, ષોડશ ગ્રંથના અભ્યાસની, ક્રેશ કોર્સ રૂપી શિબિરો ચાલી રહી છે, બહારગામની પ્રવૃત્તિ છે, એમાં જે બી આપની રુચિ હોય, જે બી અનુકૂળ સમય હોય,
એમાં આપણે જોડાઈ જઈએ. આપણે એવો વિચાર કરી રહ્યા છે કે આ રવિવાર અથવા સોમવાર સુધીમાં એક પેમ્પલેટ એવું બનાવીએ કે જેમાં બધાનું નામ, સરનામું, વેબસાઇટ, ઈમેલ આઈડી, ટેલિફોન નંબર, મોબાઈલ નંબર, જન્મ તારીખ વગેરે, સાથે સાથે આપણી પ્રવૃત્તિઓ, અને એમાં આપણે કયો સમય આપી શકીએ એ ઠોસ લખીને જ આ વખતે ઉઠીએ ગુરુવાર પહેલા. એવો જો સંકલ્પ આજે કરીએ મનમાં બધા, તો આપણું ઘણું કાર્ય થઈ શકશે. આપણે અત્યારે એક એવા ફેઝમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે કે આપણું કાર્ય ઓર્ગેનાઇઝ થઈ રહ્યું છે. સુખધામ રૂપી આપણને આવો સત્સંગનો હોલ મળ્યો છે. અને જે ગઈકાલે રસિકભાઈ કહી રહ્યા હતા કે બરોડા, ગોધરા, અમદાવાદમાં જે હમણાં શિબિરો થઈ, જયપુરમાં શિબિર થઈ, ત્યાં ઘણો જ બધો વૈષ્ણવનો ઉત્સાહ હોય છે. અને એ ઉત્સાહ અથવા તેમની વાતો સાંભળની આપણને પણ થાય. અને કદાચ એવું ન બને જેમ આપણી સંસ્કૃતિ આપણને ગોરિયાઓ શીખવાડશે આજથી 50 વર્ષ પછી, જો આપણે જાગશું નહીં તો એવું પણ બને કે મુંબઈમાં જે અવેલેબલ હોય, સુખધામ અવેલેબલ હોય, ઘણા બધા જાણકાર વૈષ્ણવ અને વિદ્વાન વૈષ્ણવો અવેલેબલ હોય, અને બરોડા આપણાથી આગળ નીકળી જાય કે અમદાવાદ આપણાથી આગળ નીકળી જાય, તો આપણે બી ભલે કદાચ એ રીતે થોડી કોમ્પિટિશનની ભાવના થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ આપણે પણ દર પિરિયોડિકલી જે બી પ્રોગ્રામ કરતા હોઈએ છીએ એમાં કંઈક ને કંઈક સહભાગી થઈએ એ અપેક્ષા સાથે. અને પ્રવૃત્તિને વિશે તો મને લાગે છે કે ગઈકાલે રસિકભાઈએ વાત કરી હતી. એટલે હવે પછી જે બી પેમ્પલેટ થાય એમાં મેં આ પ્રમાણે જે ઉપર છેલ્લી પ્રવૃત્તિ કીધી, બહારગામ ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે, વેબસાઇટની પ્રવૃત્તિઓ છે, ટ્રાન્સલેશનની પ્રવૃત્તિઓ છે, એમાં જેને જે સમય અનુકૂળ હોય એ પ્રમાણે પોતાનું નામ આપી અને કોન્ટેક્ટ નંબર લઈ લે કે જેથી કરીને આપણે આના ખરેખર સહભાગી થઈ શકીએ. હવે બાકી આપણું સત્ર શરૂ થાય આજનો કાર્યક્રમ એ પહેલા થોડી શિસ્તની વાતોમાં તો મોબાઈલ બંધ કરી દેવા. ત્યાં આગળ ચપ્પલનું બોક્સ છે, એટલે જેમના બી ચપ્પલો તો કદાચ 2-5 મિનિટનો સમય છે તો ચપ્પલો ત્યાં આગળ જેમને બી રાખ્યા હોય તો જેથી કરીને આપણું આંગણું ખરાબ ન થાય તો ચપ્પલો ત્યાં રાખી દેવા. અહીંયા આગળ 25મી અને 26મીનો જે પ્રોગ્રામ છે પ્રશ્નોત્તરીનો જે સાથે, એ માટેનું બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. તો પ્રશ્નો જેમને લખવા હોય તો એ બોક્સમાં નાખી શકે છે. यद्यतिष्ठत्
इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यान्निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधयेत् ध्रुवम् स्वयं परिचरेत् भक्त्या वस्त्रप्रक्षालनादिभिः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि पूजयेत् एवारे अमे एवारे परितमे चेतानि कहो देवारे एवारे अमे एवारे परितमे चेतानि कहो देवारे निष्ठाति वल्लभनि
कल आपने बताया कि बुद्ध के कहने के पश्चात ब्राह्मणों ने दूसरों को अपनाया। मैं ऐसा समझाऊं कि बाद में क्षत्रियों और वैश्यों को उपनयन की शुरुआत की, जो वेद में सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थी। क्या मेरी समझ बराबर है? नहीं भाई, ये बात मैंने नहीं कही। उपनयन तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को वेद में हतो, और इन तीनों को उपनीत किया जाता। तो इन तीनों को उपनयन के बाद जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रन से कर्म करने को अधिकार मिलता। तो जैसे विवाह वगैरह को न केवल इतनों, मगर जो अपने उनके जो भी इष्ट देव हों उनको भी समंत्रक पूजा को अधिकार मिलता। तो सिर्फ व्यवस्था प्राचीन ये होती कि ब्राह्मण संन्यास ले सकते तो, क्षत्रिय संन्यास नहीं ले सकते, क्षत्रिय वानप्रस्थ ले सकते तो, और वैश्य वानप्रस्थ भी नहीं लेते। तो वैश्य जो है वो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ 2 आश्रम थे, और शूद्र को सिर्फ 1 आश्रम। तो ऐसे ब्राह्मण को 4 आश्रम, क्षत्रिय को 3 आश्रम, वैश्य को 2 आश्रम और शूद्र को 1 आश्रम। वो व्यवस्था वेद की थी। पर जैन और बौद्धन ने क्योंकि सब कोई संन्यास लेवाना शुरू किया, फिर वाकई देखा देखी अपने अभी, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर गई, तो फिर अपन ने भी वह तरीके के संन्यास लेने और देने शुरू कर दिए। वह अर्थ में अपन ने बुद्धन की और जैनन की कॉपी करी, या अर्थ में नहीं कि उपनयन या वेद नहीं पढ़ाए जाते थे। तो बुद्ध ने ऐसा आक्षेप अपने पे किया। तो कल जो मैंने श्लोक बताया कि वो वेदातीत जड़ा विप्रा, एक बात ध्यान समझो कि बाद में विप्र को मतलब ब्राह्मण हो गया, मगर ओरिजिनली शास्त्र में वेदाभ्यासात भवेत् विप्र। जाने भी वेद को अभ्यास किया है वो तो विप्र है ही, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। पीछे से वो विप्र शब्द ब्राह्मण के अर्थ में रूढ़ हो गया हो, तो जैसे महाराज शब्द रसोईया के अर्थ में रूढ़ हो गया। कोई शब्द मूल में कुछ और अर्थ क्यों है, बाद में कहीं और अर्थ में रूढ़ हो जाए। हाँ, माइक ले लो। प्राथमिक मूल और इतर मूल में जो अंतर है, अपन मूल के 2 विभाग, प्राथमिक मूल और इतर मूल, वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे। क्योंकि यदि मूल है तो इतर मूल को क्यों रूढ़ी में नहीं लेना, और जहाँ से इतर मूल की शुरुआत, इतर मूल यदि कोई मूलाचार्य के वचन है, जैसे महापुरुष जी गोसाई जी के वचन, तो इनको क्यों मूल में ही, मूल के ये विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ आपको भी ऐसा ही प्रश्न तो कि कुछ और प्रश्न तो? यही जो जाला पूछ रहे हो, एग्जैक्ट यही है ना? यहाँ में एक आप अभी हमें देखो, ध्यान से देखो एक बात के जैसे जगजीत की एक बड़ी अच्छी गजल है, में एक शेर आवा है कि देखा तो अपना साया भी मुझसे जुदा मिला, सोचा तो हर एक सिलसिले कुछ सिलसिला मिला। बात आई समझ में? जब देखूं तो वो अपनी जो छाया है वो भी मेरे से अपने को अलग दिखे, मैं कुछ अलग हूं, मेरी छाया अलग है। मगर जब अक्कल वापरनी शुरू करें तो हर एक के साथ कुछ न कुछ तो संबंध निकले ही है। तो ये जो आपको प्रभेद है वो देखने और सोचने का प्रभेद है कि अपन कौन को इतर देख रहे हैं या कौन को अपन अपनों सोच रहे हैं। जैसे
अभी स्पष्ट हो जाएगा। यही है, कल मैंने ये बात कही थी कि मैं पुष्टि मार्ग को और में रख के बाकी सबको इतर कह रहे हूं, पर सोचा तो हर एक सिमत से कुछ सिलसिला मिला। तो ऐसी बात नहीं है कि वो इतर यानी वार्थ में इतर है कि हर मायने में इतर है। जैसे अपने यहाँ एग्जैक्टली मर्यादा मार्ग को इतर मार्ग ही कह दिया गया, पर अपन अच्छी तरह से यह बात को जान रहे हैं कि श्रीनाथ जी को एक चरण मर्यादा भक्ति रूप है, एक चरण भक्ति रूप है। श्रीनाथ जी को एक नेत्र मर्यादा रूप है, एक चरण एक नेत्र भक्ति रूप है। श्रीनाथ जी की पीठिका में एक तरफ मर्यादा भक्त है, एक तरफ पुष्टि भक्त है। अब क्या इतर है और क्या अनितर है? तो ये जो बात है ना, अपन कौन सी बात पे ध्यान रख के कह रहे हैं वासु इतर या एक ताब है? सब चीज इतर है, क्योंकि मूल में यदि अपन शुद्धाद्वैत समझें तो सब कुछ एक ही है। तो जो इतर और जो स्व बन्यो है वो एक ही तो बन्यो है ना। तो वह अर्थ में अपन यदि महाप्रभु जी के वचनन को मूल मान के चल रहे हैं तो महाप्रभु जी के अलावा जो भी वचन है सब इतर है। अब वो चाहे कोई कई वचन हो। एक शायद तो मेरे को याद होगा कि कुम्हार घड़ा को बनावे तो घड़ा को करता अपन कुम्हार को कहे, और कुम्हार को बाप ने यदि कुम्हार पैदा नहीं किया है तो वो कुम्हार घड़ा कैसे पैदा करेगा? तो बात ढंग से सोचो तो घड़ा के पैदा होने में कुम्हार का बाप भी कारण है, पर घड़ा की पैदाइश में यदि अपन सोचें तो कुम्हार ही कारण है, कुम्हार को बाप कारण नहीं रह जाए। तो घड़ा के कारण के एंगल से अपन सोच रहे हैं तो कुम्हार को बाप इतर है। कुम्हार के एंगल से सोच रहे हो तो कुम्हार को बाप इतर नहीं है, क्योंकि कुम्हार को बाप नहीं है तो कुम्हार कहां से पैदा होगा? जैसे कुम्हार नहीं है तो घड़ा कैसे पैदा होगा? ऐसे कुम्हार को बाप नहीं है तो कुम्हार कैसे पैदा होगा? पर घड़ा के एंगल से सोचो तो कुम्हार ही वहां का कारण है, कुम्हार को बाप कारणेतर है। तो इतर में इतनी इतर माने वन सेकेंड बात वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं ले लेना चाहिए। अपन कौन को पकड़ के कह रहे हैं? जैसे अभी अपन देखो या हॉल में बैठे हुए हैं, तो या हॉल के अलावा सुखधाम के या ठठाई भाटिया कोई क्या कहवा है बिल्डिंग, सेवा फंड, तो सेवा फंड की जो बिल्डिंग है वहां में या हॉल के एंगल से दूसरे हॉल इतर हैं, पर रोड पे जाके देखेंगे तो जितने भी हॉल हैं, जितने भी रूम हैं, सब सेवा फंड की बिल्डिंग के इतर नहीं है, पार्ट ऑफ द सेवा फंड बिल्डिंग है। तो अपन कहां से देख सोच रहे हैं वापस इतर अथवा एक निश्चित हो। तो अपन ने पुष्टि संप्रदाय या टू बी वेरी स्पेसिफिक वल्लभ संप्रदाय में मूल क्या है? यदि अपन कहें कि वल्लभ संप्रदाय में मूल जो है वो वेदादि शास्त्र है, तो फिर वल्लभ संप्रदाय क्या है? वेदादि शास्त्री है। वल्लभ संप्रदाय की क्या आवश्यकता है? वल्लभ संप्रदाय यदि अपन कह रहे हैं भूले चुके, फिर अपने को यह बात कबूल करनी पड़ेगी कि तो मूल श्री महाप्रभु जी के वचन है। महाप्रभु जी के वचन के अलावा जो भी वचन है वो सब इतर वचन है। अब महाप्रभु जी उन पर रिलाय करते हैं, वो महाप्रभु जी को विषय है ना, अपना विषय नहीं है। वो विषय अपना नहीं है, वो विषय महाप्रभु जी को है कि महाप्रभु जी कौन पे रिलाय कर रहे हैं। अपने लिए विषय क्या है? अपने लिए विषय मूल महाप्रभु जी है। क्यों? महाप्रभु जी को मूल मानेंगे तो वल्लभ संप्रदाय कहवाएगा। यदि महाप्रभु जी को नहीं मूल मान रहे हो, जैसे महाप्रभु जी अपने आप को यह मान रहे हैं कि अर्थोयमेव निखिलैरपि वेदवाक्यै रामायणे सहित भारत पंचरात्रै
अन्य इष्ट शास्त्र वचन सहतत्व सूत्र ही निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव, तो वल्लभ संप्रदाय है ही नहीं, वैदिक संप्रदाय है। पर जैसे ही अपन ने कही कि हम एक वैदिक संप्रदाय हैं, तो शांकर लोग भी कहेंगे कि हम भी वैदिक संप्रदाय हैं। फिर तुम्हारे में हमारे में अंतर क्या है? शैव भी कहेंगे हम भी वैदिक संप्रदाय हैं, तुम्हारे में हमारे में अंतर क्या है? बहुत सारे मीमांसक जो हैं वो भी कहेंगे कि हम भी वैदिक संप्रदाय हैं, तो तुम्हारे हमारे में अंतर क्या है? न्याय वैशेषिक भी कहेंगे हम भी वैदिक संप्रदाय हैं, अंतर क्या है? फिर अंतर बताना मुश्किल हो जाएगा। यदि अपने को अपना अंतर बताना है कि वल्लभ संप्रदाय को कुछ अंतर है, तो कहां से बताएंगे? तो वल्लभ संप्रदाय को मूल वल्लभाचार्य के वचन है। वह वचन के अलावा जिन पे वो रिलाय करते हों अथवा जिनको वो अपोज करते हों, न जिनको रिलाय करते हों न अपोज करते हों, ऐसे तीनों ही वचन इतर वचन हो जाएंगे। सीधी सी बात है। वहां सोर्सेस में सु नेचुरली कोई बात आ रही है, अब जिन पे स्वयं महाप्रभु जी रिलाय कर रहे हैं वहां सोर्सेस से कोई बात आ रही है तो आएगी तो सही, क्योंकि महाप्रभु जी खुद उन पर रिलाय कर रहे हैं। महाप्रभु जी उन पर रिलाय कर रहे हैं तो आएगी तो सही। वो वल्लभ संप्रदाय में वाको विचारना तो पड़ेगा ही। यदि अपन नहीं विचारेंगे तो महाप्रभु जी की प्रतिज्ञा टूटेगी। पर साथ साथ अपने को ये तो देखना पड़ेगा ना कि वाह तरीके को वेद को अर्थ, वाह तरीके के वाह वचन को जो कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंस वो महाप्रभु जी ने वाह तरह से गिन्यो है कि नहीं गिन्यो? यदि गिन्यो है तो महाप्रभु जी के वचन से अपने को प्रमाण होएगा। यदि गिन्यो नहीं है तो फिर अपन महाप्रभु जी के वचन से नहीं लेके, और महाप्रभु जी ने अब दो पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान से समझो कि वेद को कोई पैसेज ऐसा हो सके कि जहां पैसेज पे अपने को महाप्रभु जी को इंटरप्रिटेशन मिले नहीं है, नहीं मिले तो वाक्य कारण क्या वो वेद को वचन अपने को अप्रामाणिक हो सके? बिल्कुल नहीं, त्रिकाल में नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर देंगे कि वेद शास्त्र विरोध है न येषाम करणम अन्वपित ही पाखंडी नोज्ञेया। यदि वेद से विरुद्ध तुम कोई बात कर रहे हो तो तुम पाखंडी हो। वो तो उन्हें अपना फाइनल डिसीजन दे रखे है। अब सवाल देखो एकदम खुल के सामने आ गया कि वेद शास्त्र से विरुद्ध अपन जा नहीं सके। कोई वेद को वचन ऐसा है जहां वेद के वचन पे महाप्रभु जी को इंटरप्रिटेशन मिल नहीं रहा है, वहां को क्या कर दो? अब अपनी अक्कल चलाओ, वो भी एक इंटरप्रिटेशन हो सके। अथवा महाप्रभु जी ने जिन वचनन में वेद के जिन वचनन को जो अर्थ कियो है वासु संगत कोई अर्थ वहां को निकालो, या वासु कॉन्ट्रडिक्शन में जातो कोई अर्थ निकालो, तो इतर सोर्स आ गई कि नहीं? बात आ गई नहीं इतर सोर्स। जैसे अभी एक सामान्य बात बताऊं, आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से कि गायत्री वेद मातरम, गायत्री जो है वो वेद की मां है। गायत्री वेद की मां है। कोई भी वल्लभ संप्रदाय को ऐसा हो ही नहीं सके कि जो गायत्री के महत्व को इनकार करके वल्लभ संप्रदाय को रह सके, क्योंकि महाप्रभु जी तो डंडा लेकर खड़े हुए हैं ना वही कि वेद से विरुद्ध है तो तुम पाखंडी हो, और वह वेद की मां गायत्री है। तो गायत्री को यदि अपन विरोध कर रहे हैं तो अपन महापाखंडी हैं, महाकुपुत्र है। सीधी सी बात आ गई। अब सवाल यह है कि गायत्री को अर्थ कैसे करना हो? गायत्री को अर्थ कैसे? देखो गायत्री बहुत सारे कई सारे वेद के मंत्र जो हैं वो सर्वनाम के मंत्र हैं, प्रॉपर नाम के मंत्र नहीं है। तो जो सर्वनाम के मंत्र हैं जैसे हूं, तमे, ते, ये सब सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम के कोई भी मंत्र हैं तो जब हूं मैं कह रहे हूं तो हूं को मतलब श्याम गोस्वामी है, पर यदि तुम हूं कह रहे हो तो हूं को मतलब तुम हो।
मैं जब तमे कह रहे हूं तो तमे को मतलब मेरे श्रोता हैं, और तुम लोग जब मुझको तमे कहोगे तो तमे को मतलब श्याम गोस्वामी हो गए। तो सर्वनाम को मतलब क्या है कि सर्वनाम के अर्थ सभी बन सके हैं, कोई को अपन बाहर नहीं कर सके कि ना सर्वनाम के तम सर्वनाम के अर्थ नहीं बन सको, ऐसे तो अपन कोई को कह नहीं सके ना। जो सर्वनाम है वो नाम से तो सभी बुलाए जा सके, सभी को बुलाया जा सके। बहुत सारे वेद के मंत्र यही तरीके के हैं कि जो सर्वनाम के हैं। तो शंकर लोग कहेंगे कि गायत्री को अर्थ निर्गुण निराकार निर्धर्मक ब्रह्म है, रामानुज कहेंगे कि नारायण अर्थ है वाको, शैव लोग कहेंगे कि शिव अर्थ है, देवी के भगवत कहेंगे कि देवी वाको अर्थ है। अब यदि अपन गायत्री को अर्थ निर्गुण निराकार निर्धर्मक ब्रह्म ले रहे हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार निर्धर्मक ब्रह्म गायत्री को अर्थ है शंकरन के हिसाब से, और निर्गुण निराकार निर्धर्मक ब्रह्म शंकरन के मत में परम सत्य सगुण सधर्मक साकार ब्रह्म व्यावहारिक सत्य माने काम चलाऊ सत्य, रेलवे की टिकट के तरह हो कि जितनी देर आपको ट्रैवल करनी है उतनी देर वो सत्य है, ट्रैवल पूरी होने के बाद टिकट झूठी हो जाए। ऐसे जितनी देर ट्रैवल करनी है उतनी देर वो सत्य है, ट्रैवल के बाद वो मंत्र वो सगुण सधर्मक साकार जितने भी देव रूप हैं वो सब मिथ्या हो जाए मुक्त होते जीव के। तो वो तब तक सत्य है जब तक आप मुक्त नहीं पाए हो, मुक्त होते ही वो देव खुद मिथ्या हो जा रहे हैं, जैसे सपना मिथ्या हो जाए जागते ही, वह तरह से। तो अब अपन कहेंगे कि गायत्री को अर्थ वो है, तो गायत्री से तो आ रही है ना बात, दूसरी जगह से तो नहीं आ रही है। अब गायत्री को ये अर्थ है, कृष्ण अर्थ नहीं है। आपको एक सीधा सा उदाहरण बताऊं, मैं कल आपको समझा रहा तो भगवान रजनीश की बात, भक्ति अब मुझको एग्जैक्ट नहीं याद है, शांडिल्य भक्ति सूत्र के नारद भक्ति सूत्र, पर दो में से कोई एक भक्ति सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान रजनीश ऐसे कह रहे हैं कि भक्ति क्या है, परम प्रेम रूपा है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। अब वहां उनने व्याख्या करते वक्त कही है कि यहाँ राम कृष्ण शिव ऐसा शब्द नहीं वापरियो है, सर्वनाम वापरियो है। जब आपको तुम प्रॉपर नाम में डाल रहे हो तब वो भक्ति नहीं रह जा रही है, जब तुम आपको डिफाइन नहीं कर रहे हो कि अस्मिन क्या, तब वो भक्ति है। अब बताओ वो भक्ति है कि नहीं? अपने लिए भक्ति है। महाप्रभु जी बेचारे गरज गरज के अल्लाह मचा रहे हैं, अतस्तु ब्रह्मवाद कृष्ण बुद्धि विधीयता, वही ब्रह्मवाद को पकड़ रहे हैं रजनीश भी, और वो ब्रह्मवाद को पकड़ के कृष्ण को कैंसिल कर रहे हैं। वो भक्ति की डेफिनेशन अपने को मान्य हो सके कि नहीं? अब महाप्रभु जी अपन नहीं पढ़े और रजनीश की बात पढ़े तो वो तो अपीलिंग बात है कि सात्वस्मिन्, कृष्णे नहीं, शिवे नहीं, बुद्धे नहीं, महावीरे नहीं, ईसा मसीह नहीं, मोहम्मद नहीं, अस्मिन, डू नॉट डिफाइन इट। जब तुम वह को डिफाइन कर रहे हो तब सेक्ट बन जा रहे हो है, फिर झगड़ा को हेतु बन जा रहे हो, भक्ति प्रेम को हेतु नहीं रह रहे हो। वह को डिफाइन मत करो, वह को अस्मिन रहने दो, तब वो भक्ति है। बड़ी रोचक बात है, डेफिनेटली बड़ी मजेदार बात है, सारे झगड़ा को खत्म करने वाली बात है। पर अच्छी है कि बुरी है वो एक सेकेंडरी बात है। महाप्रभु जी को एक्सेप्टेबल है क्या ये इंटरप्रिटेशन? मेरा प्रश्न ये है। जो महाप्रभु जी अपना ये कह रहे है कि यदि कृष्ण भक्ति में ब्रह्मवाद आड़े आते हो तो ब्रह्मवाद को श्राद्ध कर दो, कोई घबराने की बात नहीं है। वो मैंने विस्तार से कृष्ण और तात्पर्य में बताया था। इतने स्ट्रांगली कृष्ण से अटैच्ड है वो, क्या
या ब्रह्मवाद के लिए कृष्ण को छोड़ना चाहेंगे? रजनीश भी ब्रह्मवाद की दुहाई दे रहे हो। महाप्रभु जी भी अपन सर्वोत्तम के स्तोत्र पाठ में निरंतर पाठ कर चुके हैं कि साकार ब्रह्मवाद एक स्थापको वेद पारग मायावाद निराकर्ता। अब वो महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं कि मैं ड्रॉप करने तैयार हूं यदि कृष्ण से तुम विमुख होते हो तो ब्रह्मवाद को। अब वही बात ब्रह्मवाद को लेके रजनीश ये कह रहे हो कि कृष्ण यहाँ इंट्रोड्यूस तुमने किया तो लोचा हो जाएगा। अस्मिन परम प्रेम रूपा। अब इतनी सुंदर बताइए माने वो बात कि भक्ति जो है वो तो एक छलांग है। माने तुमको तुम्हारो रूप और जा देव की तुम आराधना कर रहे हो उन दोनों को खत्म करो तब सच्ची भक्ति होगी। जब तक उन दोनों को तुम कायम रख रहे हो, माने तू अपने आप को कायम रख रहे हो कि तू झाला है और तू कृष्ण को कायम रख रहे हो है कि कृष्ण कृष्ण है, तो वो कह रहे हो भक्ति नहीं है। वो तो आंख की आकर्षण है, कान को आकर्षण है, जीभ को आकर्षण है, कान को आकर्षण है, भक्ति नहीं है। अस्मिन परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा माने इंद्रियातीत रूपातीत तत्व में परम प्रेम वो भक्ति है। बड़ी रोचक बात है, सुनते ही अपीलिंग है। आज के सेक्युलर माहौल में माने हॉट केक जैसी बात है, पर वो सारे वहां के मेरिट्स हो सके। अपन के संप्रदाय में महाप्रभु जी को मान्य हो सके क्या? बाप दाखल नहीं कर श्राद्ध करा। अपने संप्रदाय में मान्य नहीं हो सके। महाप्रभु जी को वो इंटरप्रिटेशन नहीं मान्य। अपने को रजनीश मानना है तो महाप्रभु जी का ना पाड़ रहे हैं कि रजनीश मत अनुसरो, अनुसरो। पर यदि वल्लभ संप्रदाय को तुमको अनुसरना है तो इतनी रोचक इंटरप्रिटेशन को तुमको ताली बजानी है तो बजा दो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पर वासु ज्यादा वाह में और कोई बात नहीं हो सके सीरियस अपने लिए। बात समझ इतर आ तो सके ना, वही ब्रांच सात तस्मिन परम प्रेम रूपासु ही देखो वो बात आ रही है। वो गायत्री से ही आ सक रही है सारी बातें। तो कई बातें आ सके हैं और अपन बापू महाप्रभु जी के वहां में इंट्रोड्यूस कर सके हैं, पर पाछो टचस्टोन अपने को क्या रखना पड़ेगा कि यदि महाप्रभु जी की व्याख्या उपलब्ध है तो कोई सवाल ही नहीं है। पर यदि महाप्रभु जी की व्याख्या वा वचन पे उपलब्ध नहीं है, जैसे न तो शांडिल्य भक्ति सूत्र पे उपलब्ध है और न नारद भक्ति सूत्र पे उपलब्ध है, नहीं है तो नहीं है। पर अपन क्या करेंगे कि यदि महाप्रभु जी की व्याख्या नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र पे उपलब्ध नहीं है तो वाक्य जो भी इंटरप्रिटेशन है, चाहे शंकराचार्य क्यों है, चाहे रामानुजाचार्य क्यों है, चाहे मध्वाचार्य क्यों हो, चाहे भगवान रजनीश के हो, चाहे टॉम डिक हैरी के हो, जाके भी हो, उन सब के इंटरप्रिटेशन को अपन महाप्रभु जी के वचन से संगत हैं कि असंगत हैं, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना। कोई वचन अच्छे भी हो सके, कोई वचन बोरिंग भी हो सके, वो सब इश्यू नहीं है ना। संगत है कि असंगत है वो अपन संगति कहां से विचारेंगे? वल्लभ संप्रदाय में हो, शांडिल्य संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हो, नारद संप्रदाय की नहीं बात कर रहे हो। नारद संप्रदाय में सारे आ जाएंगे, अपन भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। पर वल्लभ संप्रदाय को टचस्टोन क्या होगा? तो जिनको अपन ने प्रमाण मान्यो है वो भी अतर हो सके, जो अपन जिनको अपन ने प्रमाण मान्यो है वो अपने से असंगत हैं तो भी इतर हो सके, अपने से सुसंगत हैं तो भी इतर हो सके, अपने से न असंगत है न सुसंगत है तो भी इतर हो सके। तीनों पॉसिबिलिटी वहां ओपन तो अपने को रखनी पड़ेगी ना। यह अर्थ में इतर मूल भी हो सके है और यही अर्थ में रूढ़ी भी तीनों तरीके की हो सके हैं। वो मैंने कल जितना बने उतना समझाने का प्रयास किया। और भी कोई प्रश्न हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भले। हाँ, इतर में जो कोई आवे बाकी कोई योग्यता नक्की करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति बोले और कोई शास्त्र बोले, इससे कोई
क्योंकि कोई कभी भी बोले, जब स्थापन कर दिए, कभी कुछ बात कर दी, बाद में कोई भी बात बोल दे, इस्लाम धर्म में बोल दे, क्रिश्चियनिटी में कोई बोल दे, या कोई व्यक्ति भी बोल दे, विद्वान व्यक्ति कोई नया आया कहीं, तो वो सब कुछ इतर है और संगत है तो ले लेना चाहिए, ऐसे कुछ है। माने यदि अपन वल्लभ संप्रदाय के एंगल से बोल रहे हैं तो इतर है, लेकिन फिर उसको इतर को अपन स्वीकारना नहीं स्वीकारना हो कैसे नक्की करें? वापस स्वीकार मैंने बताया ना कि महाप्रभु जी के वचन से संगत है कि असंगत है, यही पे तो निर्धार करेंगे। यदि वल्लभ संप्रदाय में डिसाइड करना है, अब जैसे गोस्वामी श्याम मनोहर को डिसाइड करना है या रसिक भाई को डिसाइड करना है, तो दाइनो बड़ो रमतो जमतो छुट्टो। पर रसिक भाई इन कैपेसिटी ऑफ, श्याम मनोहर इन कैपेसिटी ऑफ ये कंठी तो अपने को महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं वही सोचना पड़ेगा ना। लेकिन महाप्रभु जी को इंटरप्रिटेशन विषय में नहीं है, पर संगत है कि जहां वह विषय के पैरेलल कोई दूसरे इंटरप्रिटेशन से संगत दिए होए वहां नहीं होए तो वासु संगत। माने महाप्रभु जी के प्रिंसिपल की जो एक जनरल फ्रेमवर्क है, वह फ्रेमवर्क में वो फिट हो रहे है कि नहीं हो रहे है, कि वह फ्रेम को तोड़ दे रहे हो। यदि वह फ्रेम को तोड़ दे रहे है तो खत्म हो गई बात। अच्छी हो सके बात को अच्छा होना एक दूसरी बात है, और बात को संगत होना, फिट होना एक अच्छी बात है। यानी कोई भी व्यक्ति के कोई भी वचन अपन ऐसे। एक बात बताऊं, ताजमहल कितना अच्छा है, दुनिया सारी देखने आए, कोई बेवकूफ है? कितना अच्छा ताजमहल है, पर वो कब्रिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, रहने के लिए न तो वहां में टॉयलेट है, न वहां में किचन है, न वहां में बेडरूम है। रहने जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे अपन। इतना बड़ा ताजमहल, इतना सुंदर, वहां मैं सब घूम के देखे, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं किचन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फंस जाएंगे अंदर जाएंगे तो। अच्छा तो बहुत है, अपने रहने के लिए अच्छा है कि वो माने मुर्दा के लिए अच्छा है, ये तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, दुनिया को कोई आर्किटेक्चर ताजमहल की होड़ नहीं कर सके, इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, यहाँ में तो कोई दो मत हो नहीं सके। तो काय के लिए अच्छा है, ये पॉइंट तो क्लियर करना पड़ेगा ना, रहने के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं हो, फिर जो कोई बात अपने सामने आवे तो अपना महाप्रभु जी की जो कोई वचन का इंटरप्रिटेशन है, उससे संगत है तो मॉडिफाई करते ही चले जावे, ऐसी बात बनती जावे। संगत है बस ठीक है, फिर अपने कुछ चिंता की बात क्या है? एडिशन हो गई, मॉडिफिकेशन चलता ही कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा ना। एक बात समझो रसीद है, जब आप जन्मे ना, वह दिन आपके शरीर में रक्त मांस और मज्जा के नाम पे आपके मम्मी और पापा को ही रक्त मांस और मज्जा आते। थोड़े दिन जब तक आपने माँ को दूध पिया होगा तब तक रहे होगे, बाकी वाके बाद आज अब आप दावा कर सको क्या क्या आपने भोजन नहीं किया होगा, वह सबको रक्त मांस मज्जा बनिया कि नहीं बनिया। अब क्या आप ये कह सको कि रमन भाई को और आपके मम्मी को ही रक्त मांस मज्जा आपके बॉडी में है? नहीं है। तो बाकी लीनिएज है, वो रक्त मांस मज्जा कब के खत्म हो गए होंगे। अब जो आपके शरीर में रक्त मांस मज्जा है, वो जो आप खाना खुराक खा रहे हो वाकई में, पर वो खाना खुराक खाए गए, वो जो ओरिजिनली रक्त मांस मज्जा है वाकई कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है, करके आप बीमार नहीं हो, एसिमिलेट हो रहे हैं। ज्यादा दिन आप ऐसा कुछ खा लोगे, वह दिन आपको शरीर जो है वो रिवोल्ट करेगा। सीधी सी बात ये है। फिर थोड़ा केओस नहीं हो जाएगा, सब के सब जो कुछ पढ़ेगा दूसरे से बात पढ़ते आएगा, कोई ना कोई मिलते आएंगे, कोई तो भयो ही ऐसा सर्वत्र ऐसा भयो, माने बायोलॉजिकली ऐसा हुआ है, सोशियोलॉजिकली ऐसा हुआ है, स्पिरिचुअली ऐसा हुआ है, इकोनॉमिकली ऐसा हुआ है। जैसे फनी बात आपको बताऊं, पुराने जमाना में आज से 150 बरस पहले की बात है, क्योंकि अपनो संप्रदाय पैदा भयो, कैसे कैसे फनी कंसेप्ट है और हिस्ट्री है, आप लोगों को पता भी नहीं होंगी।
सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा भी सोच हो सके क्या, क्योंकि अपना संप्रदाय जब पैदा भयो तब इंडिया में करेंसी मुगलन की और मुसलमानन की चल रही थी। तो ठाकुर जी को जो भेंट धरे जाते रुपया, वो पर्शियन कॉइन जिन पे माने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखो भयो होतो तो कॉइन इनवेरिएबली। बहुत सारे मुस्लिम कॉइन्स जो होते हैं उन पे यह आयत होती है, और जो बादशाह होतो वाको राज्य को तख्त नशीनी को ईयर होतो तो कॉइन के ऊपर माने बैक और फ्रंट में। उन कॉइन कोई वापर के अपन ने ठाकुर जी को भोग खरीदे, सामग्री खरीदी, क्योंकि वो कॉइन नहीं वापरे तो कुछ भी नहीं मिले। तो जब ठाकुर जी के सामने भेंट धरने की आती तो वही कॉइन धरे जाते थे। और हमारे बहुत सारे पुराने जितने घर हैं उनमें भेंट के नाम पे वो कॉइन अभी भी मौजूद हैं। मेरे यहाँ मौजूद हैं पुराने कॉइन वाटक के। अचानक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत के अंग्रेजी के कॉइन धरने शुरू किए। सब महाराजन ने कॉइन छुआ दिए कि अंग्रेज के कॉइन छू जाए मुसलमान के नहीं छुए। अंग्रेज बेचारा मंदिर तोड़तो नहीं, तो हिंदू को कन्वर्ट करतो तो अपने दिल के मंदिर तोड़तो, तो अपने पत्थर के मंदिर नहीं तोड़तो। तो मुसलमान पत्थर के मंदिर तोड़तो तो दिल के मंदिर की आपको परवाह ही नहीं थी। सब काफिर है, नालायक, मारो काटो। पत्थर के मंदिर अपने तोड़ देते तो वाकई कॉइन सेवा में चलते थे, छूते नहीं थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन छू जाते थे। और कुछ बालकन ने वाह बखत फैशनेबल बालकन ने वाह बखत के फैशनेबल बालक ने कही कि हम तो अब कॉइन धरेंगे। तो मर्जादीन ने निंदा करी कि तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई, ये खराब कॉइन से तुम्हारी अक्ल खराब हो जाएगी, ये कॉइन तुमने भेंट में लिए क्यों? अब बोलो, आज अपने को कल्पना आ रही है बात? क्योंकि अपन जो कॉइन को जी के खरीद रहे हैं वो कॉइन अपने यहाँ करेंसी में आ गए। तो हर वक्त ऐसा ही हुआ है कि जहां एटमोस्फियर में आप पैदा भय हो वह को आप ओवरकम कर ही नहीं सको ना। आखिर कॉइन आएंगे कहां से? अब फनीएस्ट बात आपको बताऊं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूलर्स वह वक्त के मुसलमानन के कोई 1000 थे, कोई 5000 थे, कोई 10,000 थे, कोई 30,000 थे। तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के कारण वो हिंदू राजा होते, हिंदू धर्म वाले होते, अपनी स्टेट में हिंदू धर्म को फुल्ली प्रोटेक्ट करते थे, पर कॉइन पाछे पर्शियन ही चलाते थे। क्या करना का, और वो नहीं छुए, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन छू जाए। और मेरे बचपन तक मैंने ये बात देखी है कि नोट बड़े मंदिर में छूती थी, अब नोट छुए ही नहीं। नोट तो गंगात्वम सर्वदोषाणाम गंगात्वेन निरूप्यास्य तत्तदत्रापि चैव। अब नोट छुए नहीं तो मेरे बचपन में मैंने बड़े मंदिर में अच्छी तरह से देखे तो कि जैसे ही नोट फेंकी जाती भेंट में, एक पंखा लगा लगा के उसको उड़ा के बाहर काढ़ी जाती थी नोट, क्योंकि छुए तो छू जाए हो, छुए तो छू जाए। से बड़ा पंखा लाल रंग को तो इतना बड़ा पंखा करके वह उड़ा के वहां निकाली जाती नोट को। मैंने अपनी आंख से देखा बड़े मंदिर में नोटन को पंखा से उड़ते हुए, क्योंकि नोट छू जाती थी। अब आपस में आ गई। अब आपको क्या ख्याल है, नोट छुए कि नहीं छुए? मेरे मतलब क्या है? मैंने मेरा देखो शुद्ध मतलब अब मैं आपको नोट करके बता रहे हूं कि वो नोट जो कसाई के यहाँ से आई है आपके यहाँ, आप कर सको कि कसाई के यहाँ जाके आई हो तो मेरे यहाँ मत आइए। जो गाय काटने वालों कसाई है वाकई यहाँ से नोट आई, वो आप धो। हमारे बड़े मंदिर में एक बाई आती थी, सिंधी बाई, वो खुद नहाती और 100 की नोटें लाती, उन 100 की नोट को धोती अप्रस, फिर वो सूखती नोट है, सूख के फिर वो प्रसाद लेके फिर नोट को अट्टी दबा के फिर घर जाती वो, क्योंकि घर में छू जाती होगी कुछ, तो वो खुद तो नाती से नाती, नोटें भी नाती वही सब। अब नहाओ आप कोई नोट को,
ये अपरस तो वैष्णव ने पाली है, मेरे आंख के देखिए। रोज आती थी नियम से दोपहर 1:30-2 बजे, रोज नोटें धोती 100 की। अच्छी सेठानी थी कोई, 100 की नोटें सब धोती अपने साथ स्नान करते वक्त। फिर सब नोटें शुद्ध हो जाती, खुद शुद्ध हो जाती, फिर प्रसाद लेकर पाची कर जाती। अब कोई एक अपरस ऐसी पाली जाए, कोई को कहे तो पुष्टि मार्ग छोड़ के भाग जाएगा। ऐसी अपरस पालने की कहोगे ना। अब या की रूढ़ी क्या बताओ, या की रूढ़ी क्या, या के मूल क्या, या को श्याम पंथ हाथों के नहीं है, बताओ। बाकी ये सारे नखरा नोट धोने के, बड़े मंदिर को सब स्टाफ सहन कर दो, क्योंकि 100 की नोट धोती ना, फिर सब देते भी सब लोग एक्सेप्ट करते कि भाई बहुत अच्छी सेठानी है। ऐसे तो क्या पूछना। हाँ माइक लेके जो प्रश्न है वहाँ में इनको ऐसा कहना है कि केओस हो जाएगा, मतलब जो जाला को तो कुछ कहना ही नहीं है, जाला तो कन्विंस हो गया, कन्विंस जाला। रसिक भाई ने पूछी हुई कि केओस हो जाएगा। हाँ। दो में से किसी एक को प्रश्न हो तो। हाँ। तो इनकी बात में थोड़ी यथार्थता इस रूप से लगे। हाँ। कि जब पुष्टि संप्रदाय की प्रामाणिकता को निश्चय करना हो तो श्री महाप्रभु जी के मूल वचन को लेके ही वहाँ को मूल मान के ही इतर वचन को इतर माना जाएगा। तो इतर की व्याख्या में वेद शास्त्रानुसारी और वेद अविरोधी शास्त्र ही केवल इतर माने जाएंगे। यदि हम आज की नई नई फिलोसॉफी जो चली है उनको लेके यदि वाकई साथ उसको समतुलन करने को या सामने कंपेयर करने को यदि हम ट्रेंड रखेंगे तो ये निश्चित रूप से कंफ्यूजन पैदा होगा। वेद अनुसारी और वेद शास्त्र अविरोधी जितने भी फिलोसॉफीज हैं जो लेटेस्ट आचार्य तक चली है उनको ही श्री महाप्रभु जी के वचन के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। बाकी सेवा यदि करेंगे तो निश्चित केवस हो रहे। यदि निश्चित केवस हो रहे हो, समझ गया तेरी बात, निश्चित केवस हो रहे है तो वो केवस सबसे पहले महाप्रभु जी ने किया है। वो केवस सबसे पहले महाप्रभु जी ने किया है। जब वक्त महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि तदेव एतत् प्रकारेण भवति विश्रुतिर्मतम्। सुबोधनी में महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि कोई लोग वहाँ को शून्य माने हैं, कोई लोग वहाँ को कर्म माने हैं, कोई लोग वहाँ को मैटर माने हैं, और जो भी जो मान रहे हैं सब सच्चो मान रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म में सब कुछ होने की सामर्थ्य है। ब्रह्म में सब कुछ होने की सामर्थ्य है, या के लिए जिनने भी जो भी कुछ मान्यो है वो सब सच हो सके, बशर्ते तुम वाकु ब्रह्म के एक पहलू तरीके एक्सेप्ट करते हो तो। और कृष्ण भी खोटो हो सके है, माइंड इट, यदि ब्रह्म के तरह तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो कृष्ण इतर है। श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि जा वक्त कृष्ण की तुम मानता मान रहे हो, जा वक्त कृष्ण को तुम आजीविकार्थ उपयोग कर रहे हो, जा वक्त कृष्ण की तुम सकाम भक्ति कर रहे हो, वह वक्त कृष्ण भक्ति अन्याश्रय है। अन्याश्रय है, अन्य संबंध गंधो भी कंधरामेव बाधते। कृष्ण भक्ति अन्याश्रय है वह वक्त। तो जो अवैदिक तत्व है वो भी यदि ब्रह्म के पहलू के रूप में अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मुख मान्य है। और कृष्ण को भी यदि तुम अयम आत्मात्मनाम धाता के रूप में नहीं लेके और कोई एक काम पूरक देवता के रूप में ले रहे हो तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो फिर मैं जा कृष्ण की बात कर रहे हो वो कृष्ण की तुम बात नहीं कर रहे हो, वह कृष्ण को तुम भजन नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा कृष्ण को भजन अन्याश्रय है। तो ये केवल महाप्रभु जी ने किया है, घबराने की क्या बात है। मैं समझूं आपके प्रश्न को। तो मूल ये सारी बातें हैं जिन
इन बातों को अपने को पुष्टि पंथ के तहत एकदम क्लियर कट नोशन रखना पड़ेगा। और ये नोशन अपन रखेंगे, याद ये जिनके पास ये सिद्धांत वचनावली होए वो पेज 37 निकाल के देखो। सिद्धांत वचनावली के 37 पे मैंने यही लिए आचार्य वचनाशय निर्धारण प्रकारोपसंहार, माने महाप्रभु जी के वचनन को आशय कैसे डिसाइड करना, वाके लिए क्या अपनी डिसिप्लिन है। अब देखो एक बात ध्यान समझो, ये कितनी मजेदार बात है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कि आचार्य के वचनाशय को निर्धार कैसे करना, वाके बारे में भी पासे 10 प्रकार हो सके। और अभी विषयांतर हो जाएगी तो मैं 10 प्रकार आपको एन्यूमरेट करके बताऊं कि कैसे 10 प्रकार हो सके। पर अभी अपन उन प्रकारों की चिंता किए बिना सीधी सी एक नगद बात सोच के आगे बढ़ेंगे कि महाप्रभु जी ने या तो स्वयं कहीं कही होगी या कहीं नहीं कही होगी। मेरा आशय महाप्रभु जी जो बोल रहे हैं वाको आशय कैसे समझना, वाकी गाइडलाइन महाप्रभु जी ने या तो दी है या तो नहीं दी है। दी है तो अपन खोजेंगे अपन, नहीं दी है तो अपन क्या करेंगे? नहीं दी है तो अपन फिर वचन पे नहीं जाके रूढ़ी पे जाएंगे। मैं ये सब बात जो समझा रहे हो तो वो याद लिए कि महाप्रभु जी को कोई वचन है, सिद्धांत की बात जाने दो, वही वचन महाप्रभु जी को है, वो अपन कहां से महाप्रभु जी के वचन से निर्धारित करेंगे? स्वयं बहुत बड़े विद्वान बालक ने, माने जिनकी विद्वत्ता पे मोको आदर है, जिनको मैं आदर से देखूं, वाह बालक ने मेरे सामने एक दिन ये एकदम ड्रास्टिक प्रश्न रखे कि तुम सोना की कटोरी की बात कर रहे हो, महाप्रभु जी की सिग्नेचर है? सिग्नेचर तो नहीं है या स्टेटमेंट पे। और कैसे पता चले महाप्रभु जी को वचन? गोकुलनाथ जी कह रहे हैं महाप्रभु जी ऐसे बोले, ये गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी कहां कह रहे हैं? अपन कहेंगे कि नहीं इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम जाओ वाह वचन को हम महाप्रभु जी को वचन समझ लेंगे। अरे मैं अभी आपको एक कौभांड दिखाऊं कि पुष्टि मार्ग में धुआंधार सुदर्शन कवच के पाठ में इति श्री वल्लभाचार्य विरचित लिखा हुआ है। वो महाप्रभु जी को ग्रंथ है नहीं। दे दामोदर दाल में पानी महाप्रभु जी को ग्रंथ है नहीं, व्यर्थ में चला रखा है महाप्रभु जी के नाम पे वह ग्रंथ को। ऐसे तो और भी कुछ ग्रंथ हैं, वो अकेला ग्रंथ नहीं है, मगर वो महान कौभांडकारी ग्रंथ है कि जो महाप्रभु जी के नाम पे थोप दिए गए। वहां में इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम है और अच्छी भी के वो किताब, सब वैष्णव में पढ़े, डाकिनी, शाकिनी, भूतनी, प्रेतनी, मारे मारे ताड़े ताड़े। महाप्रभु जी को भांग रोग ली के क्या कियो के ऐसा ग्रंथ लिखे महाप्रभु जी ने। होश में तो महाप्रभु जी कभी यह बात लिख नहीं सके। इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम है। पता कैसे चले? पता कैसे चले? महाप्रभु जी के ग्रंथन की, महाप्रभु जी के बाद दी वही जो लिस्ट हैं,
वहां में कहीं ये मेंशन है नहीं। कोई रेप्यूटेड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में या कि मैन्युस्क्रिप्ट आज तक नहीं मिली। छापना शुरू कर दिया, वही मैंने बताया ना कि काम शुरू करो, 2-4 तो भगत मिल ही जाएंगे। वर्क इज इन प्रोग्रेस। आप हो तो एक पाटिया लगाओ, काम शुरू करो, वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम शुरू हो जाएगा। काम होता है कि नहीं होता है, सब लोग आपको अवॉइड करके जाएंगे। वर्क चालू, वर्क इज इन प्रोग्रेस, पॉलिसी है, कोई ने छाप दिया बस।